उर्दू में खैर मकदम है आज की खबरें। मोहम्मद मंसूर अली प्रिंसिपल हिदाया हाई स्कूल संगारेड्डी की सदारत में हिदाया हाई स्कूल शांतिनगर संगारेड्डी में स्कूल के तलबा व तालिबात की जानिब से एक रोज़ा साइंस नुमाइश का नारायणा रेड्डी सिविल कॉन्ट्रैक्टर और मोहम्मद सोहेल अली साबिक़ काउंसलर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में हिदाया हाई स्कूल के तकरीबन 100 तलबा व तालिबात ने इस साइंस नुमाइश में हिस्सा लेते हुए अपने अपने सलाहियतों के ज़रिए तैयार किए गए प्रोजेक्ट्स को पेश किया। इस मौके पर नारायणा रेड्डी सिविल कॉन्ट्रैक्टर और मोहम्मद सोहेल अली साबिक़ काउंसलर ने अपने अपने खिताब में हिदाया हाई स्कूल के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए हिदाया हाई स्कूल की सताइश की। क़ब्ल अज़ां नारायणा रेड्डी सिविल कॉन्ट्रैक्टर और मोहम्मद सोहेल अली साबिक़ काउंसलर की स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से शॉल पोशी की गई और मोमेंटो पेश किया गया। बाद अज़ां इस साइंस नुमाइश में अव्वल आने वाले 10वीं जमात के तालिबात ज़ेबा सदफ़ और ज़ोया फिरदौस को प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के लिए कप और मेडल से नवाजा गया और दूसरे मुकाम पर आने वाले चौथी जमात के तालिबात अनम रहमान, आफिया नाज, सुमैया बेगम और हमीदा फातिमा को प्रोजेक्ट हेल्दी फूड और जंक फूड के लिए कप और मेडल से नवाजा गया। इसके अलावा इस साइंस नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा व तालिबात को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर मोहम्मद मंसूर अली प्रिंसिपल हिदाया हाई स्कूल संगारेड्डी ने कहा कि इस साइंस नुमाइश का मकसद बच्चों को साइंस की अहमियत और इफादियत से रोशनास करना है ताकि आने वाले दिनों में तालीमी मुकाबले का बच्चे डट कर मुकाबला करें, क्योंकि आज की साइंस कल की टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी की बेहद ज़रूरत है। हिदाया हाई स्कूल का शुरुआत से यही मकसद रहा है कि हमारे नौनिहालों को अच्छी तालीम फराहम की जाए। इस साइंस नुमाइश के मौके पर हिदाया हाई स्कूल के ज़िम्मेदारान मोहम्मद ईसा, मोहम्मद मज़हरुल्लाह खान, सैयद मोइनुद्दीन के अलावा हिदाया हाई स्कूल के असातिज़ा और तलबा के वालिदैन की कसीर तादाद मौजूद थी। Good morning everyone, I am Afiana from 4th class. On this science day I want to sing a song. Which metals are magnetic? What keeps us on the ground? Why do sponges soak up water? How do drums make sound? Does all fruits grow on trees? Is every cloud the same? Where can I find the answers? You all are its slave. Science, science, dive right into science, science, dive right into all of the life outside your door. With science you understand it more. All of the life outside your door. With science you understand it more. Thank you. Sir, teachers and dear friends, I am truly excited to stand before you today at our school science fair. This is a day to celebrate curiosity, creativity and incredible things we can discover. C.V. Raman, 1888 to 1970, one of the India's most famous physicists, known for his groundbreaking contribution to the understanding of light and sound. His most famous discovery, the Raman effect, in 1928, revolutionized the field of molecular physics and achieved a Nobel Prize in Physics. In 1930, the discovery demonstrated that when the light passes through a transparent material, the most of the light is scattered, but a small portion undergoes a change in wavelength. This phenomena is known as Raman scattering. Provide critical insights into molecular energy levels and molecular structure. C.V. Raman legacy is not just a discovery, but also an enduring impact on the science of India. Thank you. Good morning everyone. Respected Mr. T. Nara Reddy Garu, our building owner and great famous civil contractor, and emerging leader of our society, Mohammad Sohail Ali Sahab, the General Secretary of Al Hidayah Educational Society, Mr. Mazharullah Khan Sahab, Vice President, similarly Mohammad Isa Sahab, the Treasurer, and my co-partner Sayyid Moinuddin Sahab, and dear parents. As you know that our staff has been organized a science exhibition to develop the caliber of the students. If
Today they know science that will become technology of tomorrow. So we want to develop the caliber of the students. Our management is very clear to promote the quality of education as well as with the Islamic ethics and culture. So in this regard, we have a function today, and also a lot of more will present. We have such type of enthusiasm, and on this occasion I am very thankful to the guest, especially Narayan Reddy sir, who is always cooperative with us. He has constructed a standard building for us with fully engaged with all of facilities. He has always been with us, especially behalf of my team. I am giving a lot of thanks to him. With these words, I am taking part. You have to experience the exhibition today, which is made by our little young minds. Thank you very much. हमारा साथ में बैठे वाले को प्रिंसिपल साहब को सबको नमस्कार। पेरेंट्स को भी हमारे को ये प्रोग्राम में आने का बहुत खुशी से आया। क्यों बोले तो साहब ने बोला अपना स्कूल में आप ही चालू करो, इसीलिए आया था। हमारे को इधर देखे तो बिल्डिंग बनने का टाइम में मेरे को लगा हमारा बच्चे लोग का बच्चे पूरा इधर ही पढ़ रहे। हम पढ़ाया था सबका, ये जो कम से कम 50 आदमी पेरेंट्स है हमारा पास पढ़े सो, मेरा साथ में पढ़े सो, मैं पढ़ाया सो। हमारा बेटा भी इधर ही था। पहले इंग्लिश मीडियम अपने पास 2nd 3rd तक था, बाद में तेलुगु मीडियम पढ़ाया हम। हमारा बेटी अभी आज MS गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है। आज फाइनल एग्जाम है, वो डॉक्टर भी बन गए। और एक अपने पास स्कूल में पढ़े वाले बहुत डेवलप हो गए वाले IAS एक है। अपने पास एक 2-4 जने फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले बड़ा ऑफिसर लोग हैं। अभी वो लोग को इनवाइट करेंगे बोल के अभी साहब को एडवाइस दिया एक्चुअली एनुअल डे को। वो क्या है अपना स्कूल में बहुत खुशी का ऐसा लग रहा है। बोले तो हमारा बच्चा पूरा इधर मेरे पास शिमला का आया, सब का तो बच्चे इधर ही पढ़ रहे हैं। उनका बच्चे सर हमारे बच्चे इधर ही, हमारे बच्चे इधर ही, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे खुश हो गए। हमारा स्कूल भी अभी जब भी स्टैंडर्ड था, इसीलिए वो स्टैंडर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं उसका बच्चों के साथ। मैं ऐसा खुश हो गए। हमारे को इधर बैठे तो जस्ट लाइक फैमिली के सर का दिख रहे। हम तो पढ़ाने के लिए बहुत शौक था। अभी क्या है स्कूल बनाएंगे बोल के ये लोग को पूछा, आप चालू करेगा मैं करेगा। लॉकडाउन में भी पूछा, नहीं तो हम बंद करने का इच्छा नहीं है। हमारे को इसमें कुछ प्रॉफिट के लिए नहीं है। हमारे को बहुत खुशी लग रहा है ये कंटिन्यू करना है स्कूल के लिए। हमारे लग रहा है एडवर्टाइजमेंट कुछ करे तो और एक बिल्डिंग होना पड़ता। मेरे को ऐसा लग रहा है इधर बिना एडवर्टाइजमेंट के इधर स्टैंडर्ड के ऊपर पढ़ रहे हैं। अभी बच्चे स्टैंडर्ड के ऊपर ही आ रहे हैं, नाम से नाम। एडवर्टाइजमेंट में 0 है लोग। मैं अभी बताया एडवर्टाइजमेंट करो और एक बिल्डिंग बना के दे देंगे, अच्छा कर लो। और हमारा स्कूल का टाइम में मैं थोड़ा गिफ्ट वो करता था आप लोगों को। हमारा बच्चे जो पढ़े वाले में जो पेरेंट्स नहीं है सो वाले को हम एक्चुअली फ्री फीस पढ़ता था। कभी को बोले तो ये लोगों को बर्डन हो जाएगा, दूसरों को दिया, इसीलिए मैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं होके अभी क्या कर रहे हैं 1st से 10th तक कोई फादर नहीं वाले इनके पास एंट्री कर दो। हमारे बेटी का बर्थडे 8 जून में रहता, उसको बुक्स मैं फ्री में दिला देता हूँ और जून में। ये हमारा वादा है, कंटिन्यू करेगा। थैंक यू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले स्कूल के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल और तमाम प्रिंसिपल साहब और तमाम उनके पार्टनर्स और नारायण रेड्डी साहब तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा स्कूल तामीर करे। और मेन में बोलने की बात ये है, आज हम देख सकते हैं, आज मैं आते आते ही देखा कि यहाँ पे आप प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं हिजाब की अहमियत। स्कूल्स तो बहुत सारे हैं देखने को मिल रहे, एक से एक आला स्कूल है, मगर इस्लामी तालीमात, दीनी तालीमात को साथ में लेके चलते हुए बच्चों को दुनिया की तालीम में भी आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। इस्लामी बोले तो पूरा इस्लामी बोलने की बात भी नहीं है इसमें। इस्लाम क्या सिखा रहा है अपने को, सुबह उठना है, बच्चे उठ रहे सुबह। यहाँ पे है तो क्या है, बच्चे आजकल 11-12 बजे तक कोई नहीं उठ रहे। थोड़ा इस्लामी के तालीमात स्कूल में भी रहे तो क्या है, दीन भी मिल रहा है, दुनिया भी मिल रही। मैं बोलने की बात ये है
कि लिहाजा जो भी माँ बाप जो फ़ोनों में हैं बच्चे, और एक रिक्वेस्ट है, ऐसे इनोवेशन काम्स होते रहे तो क्या है, बच्चों का कंसंट्रेशन फ़ोन से हटकर ऐसे नए नए चीज़ इनोवेशंस, ये चीज़ क्या है जो प्रोजेक्ट्स है आज यहाँ पे नहीं, आपको हाई लेवल में भी ये तजुर्बा काम में आने वाला है, ना कि स्कूल तक। आप इंटर में जाइए या ग्रेजुएशंस करिए, ऐसे आने वाले उसमें प्रोजेक्ट्स टच होंगे और आपको नौकरी में भी होने दीजिए, आला मुकाम हासिल करने में भी आपको ये चीज़ तरक्की मिलेगी। और मैं आपसे मेन स्टूडेंट से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, टीचर होंगे, डिसिप्लिन के साथ उनके तालीमों पे अमल कीजिए। आप यहाँ पे स्कूल में भी सफल रहेंगे, आगे चल के इंटर डिग्री जहाँ पे भी है सफल रहेंगे। और अपने माँ बाप का एहतराम करो, मैं घर से निकलते हुए वालिदैन का एहतराम करके निकलो। आए बात स्कूल में आए बात भी डिसिप्लिन से रहे तो क्या है, डिसिप्लिन में क्या है आपकी हो सकता कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा हो, कोई लास्ट आ रहा हो, इसका ये मतलब नहीं है लास्ट वाला वीक है, नहीं समझना आप लोग। लास्ट वाला भी अगर डिसिप्लिन से रहा तो फर्स्ट वाले को भी बीट कर सकता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हर एक को सेम है। सेंसारगंज तो आप पढ़े होंगे, किसी का दिमाग इनोवेशन की तरफ रहता, किसी का दिमाग पढ़ाई की तरफ रहता, किसी का दिमाग कोई और तरीके पे रहता। लिहाजा आप सभी लोग डिसिप्लिन और टाइमिंग के साथ वक्त लगाए तो आप भी आगे चल के इंडिया क्या आप जो भी मुकाम हासिल करना चाह रहे, जैसा नारायण रेड्डी साहब बोले मेरे स्टूडेंट्स IAS बने, ऑफिसर्स बने, आप लोग भी कल फ्यूचर के हम देख सकते होंगे, आप भी IAS हो सकते हैं, कोई बड़े मुकामात पे फैज़ पा सकते हैं इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ आप सभी आला से आला मुकाम पे रहें। शुक्रिया। Creativity and innovation at its best. Our students has put together an exciting science exams together and welcome. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम राफिया बेगम है, हम सब शोबे हिफ्ज़ के तालिबात हैं। आज हम आपके सामने इस्लामिक पान को लेकर आए हैं। आज मैं आप लोगों को खुलाफाए राशिदीन के बारे में कुछ मुख्तसर बातें बताती हूँ। ये 4 खुलाफाए राशिदीन हैं। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और चौथे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। खुलाफाए राशिदीन इस्लाम के वो 4 पहले खलीफा हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करते थे। इनका दौर इस्लाम की तारीख में एक अहम और रोशन दौर था, जिसमें इस्लाम न सिर्फ अरब के अंदर बल्कि दुनिया भर में फैल गया। इन्होंने अपनी खिलाफत, ईमान और हिकमत से इस्लाम को मजबूती और तरक्की दी। जज़ाकल्लाह। ईद हमें अच्छी तरह समझ देना चाहिए कि मुसलमानों की ईद सिर्फ 2 है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इन दोनों ईदों की अपनी अपनी अहमियत और मकसद है। ईद के दिन मुसलमान अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने दिल में अल्लाह का शुक्राना अदा करते हैं। ईद का दिन सिर्फ खुशियाँ मनाने नहीं होता, बल्कि एक नई रूहानी सफाई का भी दिन होता है। इस दिन लोग अपने आप को बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अनीफा आलम है और ये राबिया बेगम है। हम दोनों शोभा हिफ्ज़ के तालिबात हैं। आज का हमारा मकसद पर्दे की अहमियत और उसके फ़ायदे हैं। पर्दा करने वाली औरत की कब्र कुछ इस तरह होगी और बगैर पर्दा करने वाली औरत की कब्र कुछ इस तरह होगी। एक औरत को पर्दे की अहमियत और उसके फ़वाइद को समझना बहुत ज़रूरी है। पर्दा सिर्फ जिस्मानी लिबास का मामला नहीं, बल्कि एक रूहानी और अखलाक़ी फरीदा है जो ख़वातीन की इज़्ज़त, वक़ार और शख्सियत को महफूज करता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी जगह पर्दे का हुक्म दिया है ताकि ख़वातीन अपनी हिफाजत कर सके और इनका दामन शर से बचा रह सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मज़ीद तफसील ये है, पर्दा करना सिर्फ दुनिया की रज़ा से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। ये एक इबादत है जिसमें
उसके लिए मुकर्रर कर देते हैं। अल्लाह हमें सही हिदायत दे और हम सबको अपनी रज़ा की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। In our Hidayah High School. Today I am going to prepare a microscope slide with the experiment of onion peel. First of all, what is microscope? Microscope is an instrument is used to see objects that are too small to be seen by the naked eyes. It is used to examine bacteria and viruses. It is used to examine minerals and metals in a blood sample. It is used in the investigation of a crime in a forensic lab. Preparation of microscope by the experiment of onion peel. Microscope slide is a rectangular strip on a clean and clear glass. Peel an onion and cut out a small fleshy portion from the peel by the adding of a drop of water. You can observe the rectangular cell with the spot and at the center of this cell. They indicate the nucleus. The cell is compact with packed each other. Conclusion. So I conclude the nucleus and cell wall with the present in the conclusion. So I conclude that the onion peel cell is the plant cell with the cell wall, large vacuole and prominent nucleus. Thank you to everyone. Myself Mohammed Hamza from class 10. Good morning, everyone. Myself MD Rehan from class 10. So we are welcoming you all to Science Exhibition 2025. Antibiotic resistance. Introduction. Antibiotic resistance is the term to describe the resistance to the bacteria of the action to the antibiotic resistance. Over the years, there has been rapid evolution of antibiotic resistance. There has been killing thousands of people annually. Causes of antibiotic resistance. Here we can see the understanding inappropriate antibiotic use. Inappropriate antibiotic use can refer to two types of antibiotics. Misuse when an antibiotic is prescribed but not needed, or when the wrong antibiotic dose or duration is chosen. Welcome to Science Day celebration of 2025 in our school. Myself Nuria Fatima, I am from 5th standard. Good morning, myself Amina Samdani from 5th Venus. Good morning, myself Zubeda Unisa from 5th standard. Good morning, myself Nadia Unisa from 5th standard. Good morning, myself Shana Begum from 5th standard. Today we are presenting model on journey of wood. Fluffing the first farmer prepare the soil. Then a small farmer use oxen, whereas the big farmer use tractor to fluff their fields. The snow in then is snow the seed germinates and small plants appear. Let's see, this is irrigating. The next step is irrigating the crops. The young plants are watered regularly and insecticides are sprayed to keep them safe from insects. This is harvesting. In about 6 months, the crops are ready for harvest. Then they are harvested by many workers in the fields. Threshing. After the crops have been harvested, grains are separated. Winnowing. Winnowing is the process of removing husk from the grain. Thank you. Wholesalers buy these sacks of grains from the farmers. The retailers buy it from the wholesalers. Retailers and Plates are washed, clean and cooked. We eat and enjoy this food with our family. We must always remember and be thankful to our farmers who work so hard to provide us with food grain. We must not waste food. Thank you for listening. Fatima from 3rd class. Good morning, myself Afla Siddiqa from 3rd class. Good morning, myself Afshimiza from 3rd class. Welcome
Welcome to our science exhibition in February 2025. Today we are presenting the model of landform of Earth. The different natural features of Earth are called landform. Different landforms are plains, mountains, plateaus, desert, island, river, etc. Mountains, it is a very large and natural elevation. They are narrow on the top and broad at the base. Mount Everest is the highest mountain peak. Plateaus, it is a highland with flat top. It is also called a tableland. Forest, an area of land covered with trees, bushes and plants is called a forest. Desert, dry land which receive little or no rainfall are called desert. Island, a piece of land surrounded by water. 2025 in our prestigious Hidayah High School. Good morning everyone, myself Tahura Saeed. And myself Sarah Sudana, and we are from 8th standard. Now we are going to presenting the working model on LPG gas leakage detection. This is our LPG leakage detection system. It's our battery, it's a buzzer and it's the main MQ2 gas sensor with LED. About this project. In this project we are going to guide you through creating an LPG gas leakage detection without using an audio node. This is a straightforward gas. Whenever the gas released from the lighter, buzzer will get glow. After making this project, we conclude that it is a very useful term of its performance. Hence, the LPG gas leakage detection is essential, is prevent accidents to save human life. This project presented LPG gas leakage detection. After making this project, this project is very simple and reliable. Thank you for listening. Good morning. Myself Sarah Tanzil from 9th standard. I am here to present the structure of kidney. The outer region of the kidney is known as cortex, and this is the medulla, inner region of the kidney, made up of pyramids and columns. This is the renal artery, supplies the blood to the kidney. This is the renal vein, removes the brain's blood. These are the nephrons, functional unit of kidney. Each kidney contains around 1.2 to 1.8 billion nephrons. This is the pelvis. Collects the urine from the renal pyramids and stores here. This is the urethra, tube which carries urine and passes to the bladder. This is the adrenal gland. Thank you. Exhibition in our prestigious school. We are from 10th standard. We are here to present the structure of heart. Heart is divided into 4 chambers. Heart is called the pumping station of human body. The upper 2 chambers are called as atrias. You can see here these are the atrias. And the lower 2 chambers are called as ventricles. These are ventricles. The heart is separate. The atrias and ventricles are separated from each other by these septum. This septum prevents the mixing of deoxygenated and oxygenated blood. The right atria and right ventricle are connected to each other by bicuspid valve. The left atrium and left ventricle are connected to each other by tricuspid valve. The largest artery is this aorta. This aorta supplies blood to each part of the body except lungs. This is the pulmonary artery which supplies deoxygenated blood to lungs. The blood passes twice through the heart to be oxygenated and deoxygenated, first from the heart to lungs and second from the heart to body. This is about heart, and the walls of the ventricles are relatively thicker than the atrial walls. This is the atrias and this is ventricle. You can see here, these are thick and these are thin walls.
major disease or sudden shock which is faced much more by people is heart attack. Heart attack is also known as a myocardial infarction occur when blood flow to the heart is called block deprived vessel of oxygen. This can happen when blood vessel supply oxygen to the heart is called a coronary artery become blocked. Causes a sudden contraction of a coronary artery can stop blood flow to the heart. Health condition: high blood pressure, high cholesterol, diabetes, obesity and eating disorder can increase your risk. First aid for heart attack. First aid is the immediate assistance provided to a person suffering from an injury or illness until the professional medical help can be obtained. First aid for cardiac arrest or heart attack. First, we have to call the emergency service. Second, we have to help the person sit down. Third, we have to ask if the person have any chest pain medication like nitroglycerin. If they have, we have to help them take it. We have to stay with the person until the emergency services arrive. We have to lose any tight clothing. Thanks. Very good. Take good care of your heart today for a better tomorrow. We welcome you on the celebration of National Science Day in our school 2025. Today we are here to explain about structure of brain. Brain is an organ in the head that controls body function including thought, movement or memory. When compared to body functions, human brain is quite large as compared to several other animals. Human brain is present in the heart bony box like structure called cranium. It is covered by 3 layers called meninges. The meninges cover the spinal cord as well. The space between the layers called cerebrospinal fluid. It serves as a shock absorbing medium and protects the brain against shocks, jerks along with the meninges and cranium. The nerve cell bodies together capillaries form a mass called grey matter. While the myelinated axons or those covered by the fatty shades forms white matter. The grey matter is usually present on the periphery while white matter is present towards the center. The brain contains 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain consists cerebrum and diencephalon. It divides the 2 lobes called cerebral hemisphere. The surface of the cerebrum has many folds. They appear as elevation called as gyri, and depression called as sulci. Corpus callosum connects the 2 hemispheres. Function: site of mental ability, controls thinking, perception and emotion. Diencephalon is cerebellum. It functions: it relays motor impulses from cerebral cortex to the spinal cord and relays sensory impulses from spinal cord to the thalamus. It shows reflexes for sight and hearing. Hindbrain. This is the last part of the brain. Consists of cerebellum and medulla oblongata. Cerebellum. It is located below cerebrum and above medulla oblongata. Functions: maintains posture, equilibrium and muscle tone. Coordinates voluntary movements initiated by cerebrum. Medulla oblongata. It is on. I want conclusion. Today we are presenting the model art. Our eyes related science here. Let me after most layer is first layer. I am teacher of this study Today we are presenting our key model of automatic navigation. This model is a term detected by exam purpose which is automatically set out. This will be useful to the written Good morning,
उत्तराखंड रांची, हिमाचल प्रदेश शिमला, आंध्र प्रदेश अमरावती, कर्नाटका बेंगलुरु, महाराष्ट्र मुंबई, तेलंगाना हैदराबाद, मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान My name is Sabina Fatima. My name is Zayan Habib. My name is Muhammad Asad. We are from second class Jupiter. Welcome to our science fair. We are presenting the model of modes of transportation. Transportation is the movement of people, animals, and goods from one place to another. There are three types of transportation: air transportation, water transportation, land transportation. Now my friends will explain about types of transportation. Air transport. Air, the transportation of human goods and mail by the air using trains, aeroplanes and helicopter, hot air balloon. Advantages. Air transportation is the fastest mode of transportation. It is easy to carry expensive and goods. Land transportation is the movement of people and services offline using vehicles such as cars, trucks, buses, etc. The goal of land transportation: number 1, short time to reach; number 2, increase performance; number 3, reduce transportation costs. Water transport, the movement of people and goods by boat, ship across bodies of water such as rivers, lakes, oceans and seas. Advantages of water transportation: number 1, water transport can connect different regions; number 2, water transport can carry large volumes of goods. Thank you. We are from second class Jupiter. Welcome to our science fair. We are presenting the model of transportation. Transportation is the movement of people. Good morning. Myself Sabina Fatima from 5th standard. The process of digestion from water. The food is sweet and mixed with saliva in the stomach. The food passes from the mouth to the small intestine. Right, please, Baji. Model of series selection and allocation. It is a group created by connecting energy required per battery. Series connection. Here the components are connected end-to-end in a single path. The same amount of electricity flows to every component. Here, if any one wire is disconnected, the remaining circuit will continue to work. Thank you. Example commonly used in Hydropower has less negative environmental impact which are very different from those of fossil fuel power plant.
थोड़ा कहते बड़ा हो गया तो इतना करे अच्छा अलहमदुलिल्लाह बढ़ेगा प्लान करते हैं You can observe the cell wall and nucleus with the present in the onion peel. Come here. Today we are explaining about automatic data generation. Here we are about the implementation in our organizations in the very useful and critical way. Also very common. Morning and welcome to Science Technology 25 previous school. I am famous candidate. Today I am presenting the working model of Today my topic is chemistry. I will video a body full of red
मैं सेमिनार टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको शाल और एक मोमेंटो पेश करें। We distribute first and second prize. We have divided the two categories of awards. Actually, this is science fair and science exhibition award. Award to be presented for science exhibition only. We have added some Islamic presentation also. So that became so popular among all the parents. So separately we are giving to the presentation of two Islamic models as a popular presentation of this exhibition. So I request the model participant of Model Islamic Park, all the participants to collect the award and the trophy. Clap for them. To present this award to Islamic Park participants. Trophy and certificate. Rabia Begum. राबिया बेगम, हामिया जोहा, यहाँ इधर ठहर दे, इधर आई। बाद में फोटो लेते हैं। मेहमान है। $42 मॉडल्स इस साइंस एग्जीबिशन में प्रेजेंट किए गए। हर एक मॉडल स्पेशल था। किसी में भी कोई फ्लॉस या कोई ऐसी क्या बोलना चाहिए कि मॉडल अच्छे थे। हर पेरेंट्स को जो मेहमान आए वो सभी को पसंद आए। हमारे बच्चों ने बहुत कोशिश की इसको सक्सेस करने के लिए और वो 100% सक्सेस हुए। हर बच्चा अपनी जगह पे विनर है। ये जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। लेकिन पेरेंट्स के सजेशन के हिसाब से उन बेस्ट में जो बेस्ट था उसमें हम नंबर 1 नंबर 2 करे हैं। लेकिन तमाम, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि एवरी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द ब्यूटिफुली। ओके, सो सेकंड पोजीशन में अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स के वोट जो आए हैं वो मॉडल है हेल्दी एंड जंक फूड। गिव गुड क्लास ऑफ फूड। रहमान, अनम रहमान, क्लास 4 who prepared, class teacher Afia Nas, medal Fatima, Sumaya Fatima. I request Madarullah Khan Sahab to present the trophy. Class gives Rabia Begum.
अनी खानम चलिए इधर देखिए इधर इधर Sara Tanzi, LS of Kidney Live Model. Nuha Taranam, Solar System. Mariam Solar System. Layers of Atmosphere Model. Layers of Atmosphere. Mohammad Ahad Samdani, DIY Projector Model. Mohammad Farhan, Rain Detector Model. Mohammad Zishan Uddin, Rain Detector Model. System Model. Shima Noorin, 7th class, earthquake detector. अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हिदाया स्कूल में साइंस एग्जीबिशन मतलब कि साइंस डे के लिए यहाँ पर बच्चों के लिए पार्टिसिपेट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा माहौल दिखा। बच्चों को इससे इंस्पायर होना चाहिए बच्चों को, और याफ्ताब इल्म तालिब इल्म जो है आगे बढ़ना चाहिए, ये उम्मीद है। और मेरी एक गुजारिश है हिदाया स्कूल सर, प्रिंसिपल सर और टीचर्स ऑल अराउंड स्टूडेंट्स से भी, आप लोग थोड़ा मेहनत, स्टूडेंट से ख़ास करके गुजारिश है कि मेहनत थोड़ा अच्छे से करके स्कूल और अपने माँ बाप, फर्स्ट थिंक माँ बाप और स्कूल प्रिंसिपल सर का नाम रोशन कीजिए। और टीचर्स और प्रिंसिपल सर से गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम बेटर देन, क्यों, इसलिए और अच्छा होना है अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने जितने भी तालिब इल्म है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अपने माँ बाप, उनके माँ बाप की उम्मीदें बहुत है उन पर, उनको अच्छी से तरबियत, अच्छी से तालीम देना। और जितने भी यहाँ पर है बच्चे आला से आला ओहदे पे, आला से आला ओहदों पे फायज होना। और इंशाल्लाह मैं हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सर से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट टाइम बेटर देन इतना अच्छा होना चाहिए कि हर कोई यहाँ का जितने भी, जैसा कि संगारेड्डी जितने भी हैं यहाँ के तकरीबन लोग इंशाल्लाह यही स्कूल में एडमिशन लेके याफ्ताब इल्म बन के निकलना, ये गुजारिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिखा साइंस डे, और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पायर ज़्यादा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तकरीबन खुशी टीचर्स से और तालिब इल्म से बहुत खुशी मिली, जैसा कि 10th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, बड़े वो लोग से भी इंशाल्लाह अच्छे सीखने के लिए कुछ सीख के बच्चे आगे बढ़ रहे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन अच्छा चल रहा इंशाल्लाह, और आगे देखेंगे। और ये बच्चों को इंशाल्लाह पूरों को अपन बड़े ओहदे पे फायज होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी एक खुशी की खबर है कि यहाँ पे संगारेड्डी शांति नगर हिदाया स्कूल में जो 2025 फरवरी में जो एग्जीबिशन बनाया जा रहा है, इनके प्रिंसिपल है जनाब मुंशी साहब। तो अभी कुछ देर पहले मैं मेरी फैमिली से आकर मेरी बच्ची भी यहाँ पे पढ़ती है, तो अभी जो पूरा मैं देखा बहुत बड़ी खुशी हुई कि देखिए बच्चे यहाँ फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक एक के पास एक अलग अलग नॉलेज है। एक मैं एक बच्ची के पास जब देखा तो दूसरी बच्ची के पास गया तो उसके पास हर बच्ची के पास डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, तो इससे बहुत बड़ी खुशी हुई। तो मैं प्रिंसिपल का यहाँ का स्टाफ का बड़ी कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हिदाया स्कूल से प्रोग्राम रखा गया है इसका मेन प्रिंसिपल साहब और मैनेजमेंट यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इनके बारे में, हिजाब के बारे में जो बच्चे थे बहुत खुशी मालूम है, अच्छा लगा। तो से दरख्वास्त करना मुझे स्कूल के
तमाम बच्चों को हमारा से अच्छा लगे। जैसे से पूरे बच्चे पास हुए हैं क्लास में, मेरा बड़ा बच्चा पास हुआ, सेकंड बच्चा भी एस में है, क्लास 9 में है, अच्छी है, मेरी तबीयत अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है। यहाँ पर तमाम लोगों से गुजारिश है कि हिदाया स्कूल में आकर अपने बच्चों को एडमिशन करें। साइंस फेयर एग्जीबिशन ऑफ हिदाया हाई स्कूल बहुत अच्छा था। पूरे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं सब लोग। एक्सप्लेनेशन स्कूल का स्टाफ बहुत अच्छा कोऑपरेट करे वो लोग को। बच्चों को नॉलेज गेन हो रहा है इससे, और बच्चों में एक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और ऐसा एक्सप्लेन मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन करें तो बच्चे खुद इंटरेस्ट से और पढ़ते, और वो लोग को अच्छा एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते, और वो लोग भी अच्छा समझ सकते। वो लोग को भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहती अच्छा पढ़ लिए तो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल टीचर्स, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा सिखा रहे, और हिदाया स्कूल से दीनी और इस्लामी दोनों तरबियत हासिल होने को मिल रही। मेरे बच्चे बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे, समझते। और ऐसा प्रोग्राम जब ऐसा प्रोग्राम रखते हैं अपन तो बच्चों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहती। पूरे बच्चे हर चीज़ से मीन्स इस्लामिक है लो या फिर सोशल सब भी हर चीज़ से समझ के पढ़ते। आई वुड थैंक्स टू एवरीवन for Hidayah High School management, principal and everyone. It's very nice. It's such a nice school. I would first of all I am liking this school. First of all I will like this school in Islamic culture. It's such a nice culture because I'm just selected this school because it's a Islamic school. And Assalamu alaikum. I'm very thrilled to be here in the Hidayah High School as to discuss to see the passion of the students, the principal and the staff members of this school. They really work very hard for this science exhibition. I believe that science education is needed for each and every student, and ये ज़रूरी है कि एवरी स्टूडेंट के अंदर साइंस को लेकर पैशन रहना, एंड यंग माइंड्स जो बेहतर तरीके से इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी लेकर जो आ रहे हैं उसका एग्जिबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी तभी होती है जब स्टूडेंट्स जो है एवरी सोसाइटी जो है इस बात को याद रखे कि जब साइंटिफिक माइंडसेट्स होते हैं यंग माइंड्स में, देन दे कैन ग्रो वेरी वेल। एंड ना सिर्फ हिदाया हाई स्कूल में दुनियावी तालीम होती है, बल्कि दीनी तालीम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, और यहाँ के बच्चे बहुत ही इंटेलेक्चुअली लर्न करते हैं एवरीथिंग को। एंड ये सारी मेहनत यहाँ के प्रिंसिपल सर और स्टाफ मेंबर्स एंड टीचर्स के हार्ट की वजह से, एंड ऑल्सो द पेरेंट्स जो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को यहाँ पर भेज कर लर्न करने के लिए। एंड साइंस डे सेलिब्रेशन का पर्पस ही यही होता है कि साइंटिफिक एप्लीकेशंस को एवरीडे लाइफ में कैसा यूटिलाइज करना चाहिए, और यंग माइंड्स की एक क्रिएटिवनेस बढ़ाती है साइंस एजुकेशन। सो ये ज़रूरी है कि एवरी गवर्नमेंट एंड जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे इस बात की जिम्मेदारी ले और इस डे को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेंस में लेकर आए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिदाया हाई स्कूल शांतिनगर संगारेड्डी में साइंस फेयर मुनक़िद किया गया है, जिसमें तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और न सिर्फ साइंसी खाके बनाए हैं बल्कि दीनी खाके भी बच्चों ने तैयार किए हैं स्कूल के तलबा ने, और स्कूल में ख़ासकर शोबे हिफ्ज़ के तलबा ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और इस्लामी खाके तैयार करके लोगों को मुतासिर किया है। बेहद लोग मुतासिर हुए हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में असातिज़ा की भी कोशिश रही, टीचर्स की भी, उन लोगों ने भी बच्चों को तैयार कराया, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आज सुबह से आ रहे हैं और प्रोजेक्ट देखकर, ये जो बच्चों के खाके वगैरह तैयार किए गए हैं, ये देखकर बहुत मुतासिर हुए हैं और बहुत बच्चों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं वो लोग। हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को न सिर्फ साइंस फेयर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल पे भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। हमारे स्कूल हिदाया हाई स्कूल का शुरू से, जब से स्कूल कायम किया गया उस वक़्त से हमारी ये सोच रही है कि बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाए। आमतौर पर ये होता है कि बच्चे या तो दुनियावी तालीम में मुकम्मल उसी तरफ उतर जाते हैं या फिर दीनी तालीम मुकम्मल इस तरफ हो जाते हैं। तो हमारा पहले दिन से ये मंशा रहा कि हम दो तालीम को मिलाकर जो है
अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि एक हद तक हम लोग कामयाब भी हुए इस सिलसिले में। तो अल्लाह का फ़ज़ल रहा यहाँ पर। पहले तो जो है स्कूल के साथ साथ इस्लामी तालीम रही, अब जो है पिछले साल से शुबह हिफ्ज़ का भी आगाज़ किया गया। एक तरफ बच्चा जो है स्कूल पढ़ते हुए दूसरी तरफ उनके लिए शुबह हिफ्ज़ भी कायम किया गया है। तो जो लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने बच्चों को हिदाया स्कूल में जो है ना यहाँ पर एडमिशन वगैरह करा करके बच्चों की दीन और दुनिया को संवारने में कामयाब हो सकते हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए। नज़र बस से अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे की हिफाजत फरमाए। यहाँ पर पढ़ने वाले तमाम तलबा को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद मंसूर अली, प्रिंसिपल और करस्पॉन्डेंट ऑफ हिदाया हाई स्कूल। आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत ही कारामद और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट किए हैं। इसका मकसद ये है कि वो आने वाली ज़िंदगी में, आने वाली तालीमी मराहिल के अंदर इसका इस्तेमाल करें और साइंस और टेक्नोलॉजी से अपने आप को हम-आहंग करें। स्कूल के इब्तिदा से ही हिदाया हाई स्कूल का मकसद यही रहा है कि हम हमारी कौम के अंदर तालीम को आम करें। यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक एथिक्स और इस्लामिक कल्चर को परवान चढ़ाया जाता है ताकि बच्चे दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। हमारे मैनेजमेंट का मकसद ये है कि हम अच्छी से अच्छी एकेडमिक तालीम दें, बच्चों को तालीम से हम आहंग करें और आने वाले दिनों में भी हमारा यही मकसद है कि संगारेड्डी और उसके अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़े में हम हमारी कौम के बच्चों को तालीम से आशना कराएं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की इंस्पायर एग्जीबिशन में भी हमारे स्कूल के 2 मॉडल्स भेजे गए हैं, रेसिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक और ऑटोमेटिक इरिगेशन। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे, हमारे बच्चे और आगे तरक्की करते जाएंगे इंशाअल्लाह।